As we are proceeding with the topic chemical properties of the metals, the two properties we have already discussed. The first was reaction of metals with water and second was reaction of metals with the oxygen. So today we are going to discuss with the third property, and that is reaction of metals with the acids. Reaction of metals with the acids. कि जब भी मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो किस तरह से क्या वी कैन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं. तो whenever there are two strong acids, दो strong acid होते हैं हमारे पास. One is the HCl and another one is H2SO4. HCl is hydrochloric acid and H2SO4 is sulfuric acid. When the metals they react with HCl, we can say hydrochloric acid. It leads to the formation of metal chlorides. It leads to the formation of metal chlorides and releases hydrogen gas. After that, whenever the metals they react with the H2SO4 यानी sulfuric acid, it leads to the formation of metal sulfates. उससे metal sulfates बनेंगे as well as the hydrogen gas will be released. साथ में क्या release होगी? Hydrogen gas दोनों ही cases में release होगी. Is that clear? So now let's see what we can say the reaction of metals with the dilute acids, and those two dilute acids, one is hydrochloric acid and another one is H2SO4. And these are very strong acids. तो जब भी react करेंगे acids, we can say metals with the HCl, तो it leads to the formation of metal chlorides. वो बनाएगा उसी metal के chlorides और साथ में क्या evolve होगी hydrogen gas. But when the metals they react with the we can say H2SO4, they react with the H2SO4. जब वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, they leads to the formation of sulfates यानी मेटल सल्फेट्स होंगे और साथ में क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस, जो दोनों ही केसेस में रिलीज होगी. So now let's see the reaction of some of the metals according to their reactivity series. Reactivity series के according हम इन्हें देखते हैं. So very first we are talking about sodium and potassium. They react very vigorously with the metals. ये जो with the acids. With the acids, ये दो metal हैं, sodium and potassium. They react very vigorously. We can say with the acids. तो देखिए, firstly we have taken an example. We have taken here that is sodium metal. When this sodium metal it react with dilute hydrochloric acid. जब ये hydrochloric acid के साथ react करता है तो it leads to the formation of sodium chloride. It leads to the formation of sodium chloride as well as hydrogen gas is released. Now this sodium it reacts with the another acid that is sulfuric acid. It is the chemical formula of sulfuric acid, it is H2SO4. जब ये H2SO4 के साथ react करेगा तो it leads to the formation of sodium sulfate. It is Na2SO4 plus hydrogen gas will be released. क्योंकि दोनों ही केसेस में तो यहाँ पर क्या बने हमारे पास मेटल क्लोराइड्स एंड हियर द मेटल सल्फेट्स. तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बना है और यहाँ पर सोडियम सल्फेट बने हैं एंड इन बोथ द केसेस द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. I think यहाँ तक सभी को क्लियर है. Now we are taking another example that is of potassium. अब हम next metal लेते हैं that is potassium. When the potassium react with hydrochloric acid, it leads to the formation of potassium chloride and hydrogen gas will be released. तो देखिए यहाँ दिखाया हुआ है कि पोटेशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड्स बनेंगे यानी पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास बनेगा एज वेल एज द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. वही फॉर्मूला कंटिन्यू रहेगा. After that, when this potassium it react with dilute acid H2SO4. Dilute acid क्या है? H2SO4. तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी? That is K2SO4 यानी potassium sulfate. Sulfates of potassium will be formed as well as the hydrogen gas will be released. अब देखिए ये तो थे very we can say strong जो metals हैं. अब इसके बाद ये जो metals हैं ये less vigorously react करते हैं and that is कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. दो हमारे पास मेटल्स हैं. आउट ऑफ दैट वन इज द कैल्शियम एंड अनदर वन इज द मैग्नीशियम. तो देखिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. एंड व्हेन दिस कैल्शियम इट रिएक्ट विद H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट एज वेल एज द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. तो सिमिलरली वही केस चलेगा. किस तरह से? बट क्या कहते हैं कि दे रिएक्ट समवट लेस विग्रसली
ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं दोनों ही मेटल्स, बट दीज टू दे रिएक्ट समवट लेस विग्रसली विद द एसिड्स। तो यहाँ पर कैल्शियम आप देख रहे हो H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यानी सल्फेट बनता है, कैल्शियम सल्फेट मेटल सल्फेट बनता है और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। Then the next metal is magnesium. Magnesium when it react with hydrochloric acid, so it leads to the formation of magnesium chloride and hydrogen gas will be released. यहाँ भी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। After that magnesium with H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम मेटल विल बी फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। अब देखिए उनसे भी कम रिएक्टिव मेटल्स, ये तो क्या थे, सुपर रिएक्टिव, ये क्या है, उनसे कम रिएक्टिव है, और ये है जो उनसे भी कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, दैट इज एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। क्या है, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो दोनों ही मेटल, ये तीनों ही मेटल्स दोनों एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, किसके साथ, HCl के साथ भी और H2SO4 के साथ। तो देखिए फर्स्ट aluminium when it react with hydrochloric acid it leads to the formation of aluminium chloride as well as the hydrogen gas is released। तो देखिए यहाँ पर ये सिर्फ बैलेंसिंग की हुई है इक्वेशन की, आपने सिर्फ बैलेंसिंग कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है कि whenever we frame the equation after that we have to balance it। कि केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद उसे बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द बैलेंसिंग इटसेल्फ। Then we can say zinc metal when it will react with hydrochloric acid, it leads to the formation of zinc chloride. It leads to the formation of zinc chloride and hydrogen gas will be released. Then the lastly, when iron react with hydrochloric acid, it leads to the formation of iron chloride or we can say ferric chloride. इसी को हम ferric chloride भी बोल सकते हैं और साथ में क्या रिलीज होता है, hydrogen gas will be released. अब देखिए इन्हीं तीनों मेटल्स की रिएक्शन हम दिखा रहे हैं H2SO4 यानी दूसरा जो एसिड हमारे पास है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या बनेंगे, फिर से मेटल सल्फेट्स बनेंगे हमारे पास और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो देखिए तीनों ही केसेस में एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, तीनों ही केसेस में जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलते हैं, सल्फेट्स ऑफ द मेटल। तो यहाँ क्या बना, एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ पर जिंक सल्फेट एंड हियर इट इज फेरिक सल्फेट। एंड इन ऑल द थ्री केसेस द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, तीनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस हमारे यहाँ पर रिलीज हो रही है। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है कि जब भी कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड हमने दो लेने हैं, वन इज HCl अनदर वन इज H2SO4 क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो देखिए जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेंगे वी कैन से द मेटल क्लोराइड्स एंड व्हेन द मेटल्स दे रिएक्ट विद द H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेंगे मेटल सल्फेट्स और दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज आउट। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है कि देयर आर सम मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो किसी भी कंडीशन में एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हियर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम ये चार मेटल हमारे पास ऐसे हैं जो एसिड्स के साथ किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते। इज इट क्लियर? Now there is one more acid which is somewhat less reactive acid. जो होते हैं these are strong acids, ये strong acids होते हैं। एक weak acid हमारे पास होता है HNO3, that is HNO3। देखिए जब ये एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है it is less reactive in the nature, what we can say this is a weak acid, ये weak acid होता है when it reacts with the metals तो हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज नहीं होती बल्कि ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है एंड आफ्टर दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन वहां पर हो जाती है। अब देखिए यहाँ कहता है कि इट कैन रिएक्ट विद द टू मेटल्स, ये सिर्फ दो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, वन इज द मैग्नीशियम अनदर वन इज द मैग्नीज। एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज ये सिर्फ दो ही मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो जब भी ये दिस इज HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, इट इज कॉल्ड टू बी द नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास कि जब भी ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट्स विल बी फॉर्म्ड। क्या फॉर्म होंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट्स फॉर्म होंगे और साथ में रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस।
सिर्फ इन दो केसेस में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बाकी केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज है वो किसके पर्पस से यूज हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। So what we can say after that, there is the manganese, another metal. When it will react with the nitric acid, जब ये nitric acid के साथ react करेगा, तो manganese nitrates will be formed. The nitrates of manganese will be formed as well as the hydrogen gas will be released. तो ये दो ही cases हैं जहाँ पर ये weak acid, which is nitric acid, सिर्फ दो ही metals के साथ react करेगा और क्या बनाएगा, अपने nitrates बनाएगा। क्या बनाएगा? Nitrates of the metals. One is the magnesium, another one is the manganese. अब देखिए, बात करते हैं एक्वारिजिया। व्हाट इज एक्वारिजिया? कहते हैं जब 3 parts of HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 part of नाइट्रिक एसिड आर एडेड टुगेदर, जब 3 पार्ट HCl के लेकर के, या वी कैन से 3/4 पार्ट किसका लेंगे, हम HCl का लेंगे, और 1/4 पार्ट हम HNO3 का लेते हैं, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ NOCl plus H2O and this is chlorine gas is released. तो यहाँ पर NOCl and water as well as the chlorine gas is released and this chlorine gas released is called to be the nascent chlorine. इसी को हम nascent chlorine gas बोलते हैं। और एक्वारिजिया क्या होता है? ये एक्वारिजिया ग्रीक में रॉयल वाटर होता है। इट इज द रॉयल वाटर। ये वो वी कैन से ये ऐसा मिक्सचर हमारे पास तैयार हो जाता है कि 3 parts of HCl and 1 part of HNO3 when they are mixed together, तो ये क्या करता है कि कुछ मेटल्स, जैसे हमने बताया कि ये रिएक्ट ही नहीं करते, सिल्वर एंड गोल्ड, तो सिल्वर और गोल्ड जो मेटल्स हैं इनके साथ भी ये रिएक्शन शो करता है और इनको एक तरह से डिसॉल्व कर लेता है। इन मेटल्स, ये जो मेटल्स हैं, ये दोनों मेटल्स इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो व्हाट वी कैन से, जब ये डिसॉल्व किस तरह से हो जाते हैं कि गोल्ड इनके अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। अब डिसॉल्व होने का मीनिंग क्या है कि जनरली गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, हमारी ज्वेलरी पुरानी हो जाती है, तो हम सोचते हैं चलो इसे वॉश करा लेते हैं, तो वो वॉशिंग किस में करते हैं, वो एक्वारिजिया में, मोस्टली एक्वारिजिया में वॉशिंग कर देते हैं। और क्या होता है कि हमारा गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड हमारा कम हो जाता है। अगर हम उसको वेट करते हैं तो फिर हमारा बहुत सारा गोल्ड उसमें कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक्वारिजिया ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जब गोल्ड को डाला जाता है तो गोल्ड उसमें डिसॉल्व हो जाता है और बहुत सारा गोल्ड हम गोल्ड स्मिथ के पास ही छोड़ देते हैं और अपनी ज्वेलरी लेकर वापस आ जाते हैं। इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। So what we can say, ये ऐसा this is called to be the royal water एक्वारिजिया। कैसे तैयार होता है? जब 3 parts of HCl and 1 part of HNO3 मिलाया जाता है आपस में, जब इनको आपस में ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, NOCl plus H2O यानी water plus chlorine gas is released and this chlorine gas is called to be the nascent chlorine। तो देखिए अब ये ऐसा क्यों होता है कि वो डिसॉल्व हो जाता है, किसकी वजह से डिसॉल्व हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन प्रोडक्शन। ये जो क्लोरीन प्रोडक्शन हो रहा है, नेसेंट क्लोरीन जो बन रही है, इसकी वजह से, कि जब नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करती है किसके साथ, गोल्ड के साथ, तो बनता है गोल्ड क्लोराइड्स, यानी फिर से क्लोराइड्स बन जाएंगे। एंड आफ्टर दैट व्हेन इट रिएक्ट विद प्लैटिनम तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैटिनम क्लोराइड्स। तो ये था हमारे पास कि कोई भी मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड्स और सल्फेट्स बनाएगा। अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल क्लोराइड्स बनते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सल्फेट्स बनेंगे और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए बेटे, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक तो एक्वारिजिया किस तरह से तैयार होता है, क्या होता है, एंड आफ्टर दैट नेसेंट क्लोरीन का क्या काम होता है। नेसेंट क्लोरीन ही उसके डिसोल्यूशन में हेल्प करती है। जो हमने बताया कि मेटल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं इस एक्वारिजिया के अंदर, तो वो जो डिसोल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट क्लोरीन। अब पूछा जाए नेसेंट क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये रिएक्शन आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए कि HCl की 3 parts of HCl when they are added with the 1 part of HNO3 they leads to the formation of NOCl plus H2O as well as the chlorine gas is released and here the chlorine gas released is called to be the nascent chlorine, जिसकी वजह से क्या होता है, dissolution of the metals into the aquaresia। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है। So now we will see the next property, that is reaction of metals with the salt solutions. Now let's see the next chemical property, that is reaction of metals with the salt solution. तो जब भी कोई भी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है
कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कि जब भी कोई मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल वी कैन से, जब एक मेटल सॉल्ट के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो उसके साथ सिचुएशन क्या आती है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है सॉल्ट सॉल्यूशन से और उसकी जगह खुद ले लेता है. इज इट क्लियर? So what we can say, a more reactive metal displays less reactive metal from its salt solution. कि suppose this is the salt solution CuSO4 and this is silver nitrate, it is also the salt solution, and this is ferric sulfate, it is also the salt solution. जब इन सॉल्ट सॉल्यूशंस को क्या किया जाता है कि अगर जिंक के साथ रिएक्ट करा जाए तो जिंक यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल है, ये डिस्प्लेस करेगा किसी कॉपर को. कॉपर जो है ये अपने आप में लेस रिएक्टिव मेटल है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज. अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो कॉपर जो है ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, और जिंक जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है. तो ये इसे डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह ले लेगा, इसको बाहर निकाल देगा तो इट विल बिकम ZnSO4 एंड कॉपर विल बी रिलीज्ड. कॉपर को साइड कर देगा. इज इट क्लियर? Then after that similarly here AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर जो है ये क्या है अपने आप में लेस रिएक्टिव मेटल देन द कॉपर. अब कॉपर जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कंपैरिजन टू द सिल्वर. तो ये क्या करेगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर को साइड करेगा यानी डिस्प्लेस करेगा. तो कॉपर नाइट्रेट विल बी फॉर्म्ड CuNO3 होल ट्वाइस एंड सिल्वर विल बी डिस्प्लेस्ड. आफ्टर दैट FeSO4 यानी आयरन सल्फेट जब जिंक के साथ, तो जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू द आयरन. आयरन के कंपैरिजन ये मोर रिएक्टिव है, तो व्हाट वी कैन से ZnSO4 प्लस Fe यानी आयरन जो है ये इसको साइड करेगा. अब बेटे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. तो ये पहले मैं आपको बिल्कुल चैप्टर में बकायदा बहुत अच्छे से नोट करवा चुकी हूँ, जहां पर आपने आई थिंक फॉर्मूला हमने लगाया था कि काशीनाथ का महंगा आलू जरा फीका पकता है. तो वहीं पर काशीनाथ सुन रहा है, वो बोलता है कि कौन है आगे आओ. तो ये स्टेटमेंट के साथ हमने रिएक्टिविटी सीरीज को आपको दिया हुआ है. तो उसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन मेटल इज लेस रिएक्टिव. तो वो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज आपको पहले हम सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री में मैं आपको करा चुकी हूँ. तो उसी रिएक्टिविटी सीरीज को आपने ध्यान से देखना है, फिर आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है. तो आई रिपीट द स्टेटमेंट ये थी हमारी कि काशीनाथ का महंगा आलू जरा फीका पकता है. तो वहीं पर काशीनाथ वहां सुन रहा है, ये स्टेटमेंट हमने अवॉइड करनी है. तो बोलता है कौन है आगे आओ. इस तरह से हमारी स्टेटमेंट है. आफ्टर दैट तो ये हमारे पास हो गया. तो जब भी कि मेटल्स जो है जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, किसके, मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन में ही जब उनके साथ मिक्स किया जाता है या रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उस सॉल्ट सॉल्यूशन से. तो हर जगह क्या कर रहे हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से. Then the fifth property is reaction of metals with the chlorine. कि क्लोरीन के साथ जब हम किन्हीं भी मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर क्या होता है, तो क्लोराइड्स बनेंगे, मेटल क्लोराइड्स बन जाएंगे. तो मेटल क्लोराइड्स देखिए यहाँ पर, जैसे सोडियम को कराया क्लोरीन के साथ तो बना हमारे पास सोडियम क्लोराइड. देन कैल्शियम विद द क्लोरीन इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम क्लोराइड. तो क्या बन गए फिर से हमारे पास, वी कैन से द मेटल क्लोराइड्स हमारे पास फॉर्म हो गए. कि जब भी किसी मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया गया तो मेटल क्लोराइड बन जाएंगे हमारे पास. तो जब सोडियम को कराया तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम को कराया तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम को कराया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक को कराया तो जिंक क्लोराइड, सिमिलरली आयरन को कराया तो आयरन क्लोराइड और कॉपर को कराया तो कॉपर क्लोराइड. अब देखिए कहते हैं ये जो तीन मेटल है दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल और ये क्या करते हैं कि रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली रिएक्ट कर जाते हैं. कौन कौन से, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये तीन मेटल ऐसे हैं जो क्लोरीन गैस के साथ रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाएंगे. बट रेस्ट ऑफ द मेटल्स ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर, कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर, दे रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग. ये सिर्फ तभी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे जब इनको हीट किया जाएगा, अदरवाइज दे विल नॉट रिएक्ट. इज इट क्लियर? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से जो है वो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली रिएक्ट कर जाते हैं और कौन से मेटल्स हैं जो हीटिंग करने के बाद रिएक्ट. Now let's see the sixth property, that is reaction of metals with the hydrogen. कि अगर metals को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो metal hydrides will be formed. Metal hydrides यानी we can say जब sodium when it will react with hydrogen it leads to the formation of sodium hydride. Similarly when
potassium, it react with hydrogen, it leads to the formation of potassium hydride. Similar, after that, here is the calcium. Calcium, when it will react with hydrogen, it leads to the formation of calcium hydride, and magnesium, when it will react with hydrogen, so it leads to the formation of magnesium hydride. तो देखिए, these are the only 4 metals. सिर्फ यही 4 मेटल हैं which will react with the hydrogen. यही 4 मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं. रेस्ट ऑफ द मेटल दे डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस एंड डू नॉट फॉर्म द हाइड्राइड्स. अब लास्ट और 7th प्रॉपर्टी हमारी जो मेटल्स की है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारी मेटल्स की है, दैट दे आर स्ट्रॉन्ग, वी कैन से दीज आर reducing agents. Metals are reducing agents because they gives electrons to others, or we can say they donate electrons to others. तो जैसे ही electrons donate किए जाते हैं या किसी दूसरे को दिए जाते हैं तो कैसा चार्ज अपीयर होता है, that is positive charge. तो what we can say कि metals are electropositive in the nature because they donate the electrons to others. And after that we can say they help in reduction, और reduction में help करेंगे by giving electrons to others and get oxidized themselves, और खुद में क्या हो जाता है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो आई थिंक यहाँ तक ये 7 प्रॉपर्टीज सभी को क्लियर है. बेटे जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप किसी भी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. लेकिन कोई भी एक्टिविटी जो चैप्टर के बीच में दी हुई है वो आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि यही केमिकल इक्वेशंस कवर करती है उन केमिकल उन एक्टिविटीज को. तो एक्टिविटीज को जब आप रीड करोगे तो केमिकल इक्वेशन के थ्रू आपको क्लियर समझ आ जाएगा. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.